dear students. Today I will teach you, I will tell you about English poetry. Chapter 4, From an Elegy, written in a country churchyard by Thomas Gray. From an Elegy, written in a country churchyard. एलिगी मीन्स सैड सॉन्ग, दुखद गीत. रिटन मीन्स लिखा गया. इन ए कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड मीन्स ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान. एक शोक गीत जो कब्रिस्तानों के देश में लिखा गया. द पोएट इज सिटिंग इन ग्रेवयार्ड. इट इज द टाइम ऑफ हैपनिंग. He is sitting, the poet is sitting in graveyard. In graveyard there are several types of graves. There are innumerable graves. The graves are in dilapidated condition. And the poet mourns at the death of poor people. His great sympathies are along with the poor people who were unknown and unrecognized because they were poor. In the state of poorness, they were unable to do any glorious work. They were poor, so their graves, there is no tomb or epitaph on their graves, and their graves are not measured. And so the poet has great sympathy to the poor people. I tell you about the poem. The poet mourns over the simple graves of those millions who were unknown and unrecognized. We should not mock at their life of humble birth, hard toil, and homely joys. He commemorates their memory. He concludes that in this world nothing is everlasting because wealth exalted birth, power and beauty all lead to the one and the only one, in death. So it is useless to run after fame, money and reputation and power. The poem discloses the universal truth that death levels all distinctions. The poet mourns over the simple graves. कभी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, कभी जो है इन सामान्य कब्रों के ऊपर, इसमें दफनाए गए लोगों के ऊपर विलाप करता है, रोता है. आप दोज मिलियंस, उन असंख्य लोगों के ऊपर, वो वेयर अननोन एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, जिनकी कोई न तो जान पहचान कुछ भी नहीं रही. आज उनकी ग्रेव्स का आता पता नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रेव्स कच्ची थी और मिट्टी की थी, पक्की नहीं बनी हुई थी, इसलिए उनका कोई अता पता नहीं है. वी शुड नॉट मार्क एट देयर लाइफ ऑफ हम्बल बर्थ, हार्ड टॉयल. पोएट कहता है कि हमें अपने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना या कठिन परिश्रम के ऊपर या रहन सहन के स्तर को देखते हुए गरीब व्यक्तियों के जीवन पर हंसना नहीं चाहिए, उनके ऊपर पत्तियां नहीं कसना चाहिए. He concludes that in this world nothing is everlasting. वो कहता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं चलने वाली है. जो भी यहाँ पर आया या उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ,
उसका अंत निश्चित है। Because wealth, exalted birth, power and beauty all lead to the one and the only one end in death. क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, लेने के कारण घमंड करना, या अपने धन के ऊपर गर्व करना, या अपने सुंदरता भी समय के अनुसार नष्ट हो जाती है। Because physical charms decay with the passage of time. Time havoc these physical charms. So the poet tells us that it is but only death who take no distinction between rich and poor. कभी कहता है कि ये केवल मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो धनी और गरीब के बीच में कोई अंतर नहीं करती, कोई भेद नहीं करती है। ये गरीब आदमी है, इसको पहले ले जाऊंगी, और ये धनी है तो बाद में ले जाऊंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। समय आया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, आया समय तो अपना लेके चल देती है। ये पोयम आपकी है। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary way and leaves the world to darkness and to me. Once I repeat it. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. There are some difficult words, so I write the word meaning of these difficult words. Curfew. Curfew means evening bell. शाम को बजने वाली घंटी। मोस्टली ये गिरिजा है। Tolls means rings. Tolls, rings. बजती है। Knell means sound of bell. Sound of bell, घंटियों की आवाज। की आवाज। पार्टिंग डे, एंडिंग डे। दिन के बीतने, दिन के खत्म होने की। लोइंग, साउंड ऑफ the lowing herd
हर्ड मीन्स कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल। जानवरों का समूह। ली, ली मीन्स ग्रासलैंड, चारागाह। चारागाह। प्लाउमैन मीन्स फार्मर, प्लाउमैन मीन्स फार्मर, किसान। Lords, walk slowly, धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलना। Weary means tired, थका। Leaves means covered. Please pay attention. Please lend your ears to me. Curfew means evening bell, शाम को बजने वाली घंटी, मोस्टली गिरजाघर। टॉल्स मीन्स रिंग्स, बजती है। नेल मीन्स साउंड ऑफ बेल, घंटियों की आवाज़। पार्टिंग डे, एंडिंग डे, दिन के खत्म होने की। लोइंग मीन्स साउंड ऑफ एनिमल, रंभाते हुए जानवरों की आवाज़ें हैं ये। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल, जानवरों का समूह। ली मीन्स ग्रासलैंड, चारागाह। प्लाउमैन मीन्स फार्मर, किसान। प्लॉट्स मीन्स वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलता है। वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ। लीव्स मीन्स कवर्ड, ढक लिया। कम टू द पॉइंट। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द पोएट इज सीटिंग इन ग्रेवयार्ड, कभी कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, कहता है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है। टॉल्स मीन्स रिंग्स। द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और ये घंटियों की आवाज, नेल मीन्स साउंड ऑफ बेल, घंटियों की आवाज पार्टिंग डे, दिन के खत्म होने की सूचना देती है। क्योंकि विलियम कांकर के समय में, ये इंग्लैंड का किंग था विलियम कांकर, विलियम कांकर के समय में घंटी बजती थी, तो एट दैट टाइम द बेल इंडिकेट्स दैट प्लीज शट अप योर डोर्स, ये सूचना देती थी कि आप अपने दरवाजों को बंद कर लीजिए। अब ये है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स इवनिंग बेल होता है, लेकिन मोस्टली गिरजाघर की शाम की घंटी बजती है, और घंटियों की आवाज़ दिन के खत्म होने की सूचना देती है।
इसके अलावा द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। द लोइंग हर्ड, ये जानवरों का समूह जो चरने के लिए गए हुए थे, वे भी रंभाते हुए, मीन्स द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। रंभाते हुए पशु भी घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। विंड स्लोली ओवर द ली मीन्स जो हवा दिन में तेज चलती थी, शाम होने से ये भी धीमी हो गई है। जानवर भी चारागाहों से वापस आ रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। किसान भी थका हुआ अपने घरों की तरफ धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि दिन भर मेहनत करने से थके हुए हैं और धीरे धीरे घर की तरफ वापस आ रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। पोएट कहता है कि द एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। ये अंधकार पूरे संसार को ढक लिया है, अपनी कैद में ले लिया है, और मुझे भी। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। पोएट कब्रिस्तान में बैठा हुआ है और कहता है कि शाम को गिरजाघर की घंटी बजती है। घंटियों की आवाज़ दिन के खत्म होने की सूचना देती है। इसके अलावा द लोइंग हर्ड ओवर द ली। द लोइंग हर्ड मीन्स रंभाते हुए जानवरों का समूह भी चारागाह से वापस आ रहा है, और जो हवा दिन में तेज बहती थी वो भी अब धीमी हो चली है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। किसान भी थका हुआ अपने घरों की तरफ, मीन्स किसान भी थका हुआ धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। मीन्स गिरजाघर की घंटियों का बजना, चारागाहों का मीन्स जानवरों का चारागाहों से वापस आना, हवाओं का धीमा होना, किसानों को थका हुआ अपने घरों की तरफ धीरे धीरे वापस आना, ये चीज़ें क्लियरली बता रही हैं कि दिन खत्म हो रहा है और रात्रि होने वाली है। कभी अकेला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, कहता है कि एक अंधकार पूरे संसार को ढक लिया है, अपनी कैद में ले लिया है, और मुझे भी। वैसे तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। द पोएट इज सिटिंग इन ग्रेवयार्ड, द बेल ऑफ चर्च रिंग्स, इट इंडिकेट्स that the day is ending and the night is coming. Besides it, the cattle who went to the fields for grazing, they are returning. They are making sound, they are lowing. By lowing, the group of animals returning from the grassland, and the wind who was blowing very fastly in the day, it becomes slow. The farmers are also returning to their homes. They are much tired. They are walking very slowly. Means ringing of the bells, returning of the cattle to become slow of the winds, returning of the farmers. All these things clearly show that the day is ending and the night is coming. The poet is sitting alone in the graveyard. He says, the darkness has prevailed everywhere and he has also covered me. I wish that you have understood this poem clearly. My best wishes are along with you. I hope that you are staying at your home. Live happily. Thank you very much.